بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 181 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت مورد و جریان الاصول العملیت سے لے کر وقد یعترض علی اجراء براءۃ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، اصول عملیہ کے جاری ہونے کے مقام کو بیان کیا جائے گا کہ کہاں پہ اصول عملیہ جو کہ 4 گانا ہیں جاری ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پھر یہاں پہ اصول عملیہ کے جاری ہونے کے بارے میں ایک اشکال ہے اور پھر اس اشکال کا جواب دیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرماتے ہیں: مورد و جریان الاصول العملیت، جس طرح سے اصول عملی کی تمہیدی بحث میں آپ جان کر آئے ہیں کہ اصول عملیہ کے جاری ہونے کا مقام شک ہے وہ تکلیف میں۔ اب اس کا خلاصہ اگر ہم بیان کریں چند جملات میں تو یوں ہوگا: حکم واقعی میں مکلف کو جب شک ہو رہا ہے، اچھا اسباب شک جو بھی ہوں اس سے سروکار نہیں ہمارا، منشأ شک جو بھی ہو، لیکن شک ہو رہا ہے حکم واقعی کے ہونے کے بارے میں کہ میرے اوپر حکم واقعی ہے یا نہیں ہے۔ اس حکم واقعی میں شک کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی، مکلف شک کرتا ہے اس میں کہ حرمت ثابت ہے یا نہیں سگریٹ پینے کے لیے واقع اور نفس الامر میں، یعنی سگریٹ کا شرب تطن، یعنی سگریٹ پینے کے لیے حرمت کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مکلف کو شک ہے، البتہ حرمت واقعی، اور یہاں پر کوئی اور دلیل شرعی بھی کے ہونے کا احتمال بھی نہیں پایا جاتا جو حرمت شرب تطن پر دلالت کرتی ہو۔ ٹھیک، لہذا کیا ہوا کہ مکلف کو حرمت کے بارے میں، حرمت واقعی کے بارے میں شک ہے، اور دوسری جانب سے کوئی حجت شرعی کے ہونے کا احتمال بھی نہیں جو شرب تطن کے حرمت کو بیان کر رہی ہو۔ نمبر 2، مکلف حرمت واقعی شرب تطن یعنی سگریٹ کے حرمت کے بارے میں شک کرتا ہے اور حجت شرعی کے ہونے کا احتمال بھی ہے، وہاں پہ احتمال نہیں تھا پہلی صورت میں۔ اچھا مثلا خبر سکہ ہے جو حرمت شرب تطن پر دلالت کر رہی ہو، یعنی شک ہے کہ حرام ہے یا نہیں، دوسری جانب سے خبر سکہ موجود ہونے کا احتمال ہے جو بیان کر رہی ہے کہ حرمت شرب تطن ہے۔ اب ان 2 صورتوں میں طلاب عزیز، پہلی صورت میں تو شک ہی نہیں کہ برات جاری ہوگی احتمال حرمت واقعی سے کہ حرمت واقعی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اشکال دوسری صورت میں ہے، کیونکہ کبھی سے کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ آیا 2 برات جاری ہوں گی، ایک حرمت محتملہ کے بارے میں اور دوسری حجت مشکوکہ کے بارے میں، بالفاظ دیگر آیا برات کا جاری ہونا مخصوص احکام واقعہ کے ساتھ یا احکام ظاہریہ کے نفی کے لیے بھی جاری ہوتی ہے؟ یہ اصل اس میں بحث ہے، یہ سوال ہے۔ اس کے بارے میں پھر کچھ اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول کی آج کے درس میں بیان کیا جائے گا کہ 2 برات جاری ہوں گے، یہ قول۔ آئیے، لا شک فی جریان الاصول العملیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں، اصول عملی شریعت عند شک فی الحکم التکلیفی الواقعی، جب مکلف کو حکم تکلیفی واقعی فرض کا شرب تطن کے حکم تکلیفی واقعی میں شک ہو کہ میرے لیے سگریٹ پینا حرام ہے واقع و نفس الامر یا نہیں، کیوں؟ لتنجیز ہی چکے حکم واقعی کی منجزیت کے کما فی اصالت الاحتیاط، جس طرح احتیاط میں حکم منجز پیدا کرتا ہے، یعنی احتیاط یعنی عمل کو اس طرح سے انجام دینا کہ یقین ہو جائے کہ میں نے تکلیف اپنی انجام دی، اور للتعذیر عنہ، یا حکم واقعی سے معذرت کے لیے کما فی اصالت البرات،
यानी शख्स बरी जिम्मा होता है, अब माजूर है, उसके ऊपर तकलीफ उसके ऊपर मुआखजा नहीं आ सकता, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक, कि उसूल अमलिया शरइया जारी होंगे। वलाकिन कद युशक्कु फी तकलीफ वाक़ई, लेकिन बसा औक़ात कभी कभी शक किया जाता है, मैंने मुकल्लफ शक करता है तकलीफ वाक़ई में, वही शुरबतुतन, लेकिन वह युशक्कु फी क़ियामिल हुज्जत शरीयत अलैहि बिन्नहविल शुबहतिल मौज़ूइयत, कि आया मेरा जो शक है हुक्म वाक़ई शुरबतुतन के बारे में कि हुर्मत रखता है या नहीं रखता, ये दूसरी जानिब से ये भी शक है कि हुज्जत शरइया मौजूद है या नहीं है, बतौर शुबह मौज़ूइया जो आके फर्ज कर दलालत करे का शक के फिसूदुल हदीस, फर्ज कर जिसके शक हो के आया हदीस ऐसी खबर सिका आई है जो हुर्मत वाक़ई के बारे में वजाहत कर रहे हो या नहीं, यानी उसमें भी शक पाया जाता है, उसके होने का एहतमाल है। और बिना भी शुभ हुक्म दिया और हुज्जत शरीक के होने का एहतमाल है हुक्म शुभ मौज़िया के तौर पर। शुभ मौज़िया कैसे? का शक के फी हुज्जत अमारतिल मालूम वजूदहा, यानी फर्क करे उस अमारे की हुज्जत के बारे में शक जिसका वजूद वाज़ेह है, यकीनी है कि मौजूद है, यानी शक है हुक्म ताक़लील वाक़ई में। दूसरी जानिब से एक ऐसी दलील फर्ज के हमारा मौजूद है, खबर सिका मौजूद है जो आके हुर्मत शुरबतुतन पर दलालत करती है। ये दूसरी फ़ाल यूजद फ़ी हादिल हालत मौरदान है कि यहाँ पे दो सूरतें, दो मकाम हैं लिल असल अमली को जारी करने के लिए, या एक मकाम है फन्नजरी, यानी दो मकाम है असल अमली के लिए, फन्नजरी बरात तकलीफ वाक़ई मशकूक, यानी एक मरतबा हम तकलीफ वाक़ई मशकूक यानी वो उस तकलीफ वाक़ई के बारे में जिसके बारे में मुकल्लफ कोई शक है उसके बारे में बरात जारी करते हैं कि साबित करते हैं हुर्मत शुरबतुतन नहीं है। वह नजरी बरातन उखरा, दूसरे बरात जारी करते हैं अनिल हुज्जत अइल हुक्म ज़ाहिर मशकूक, के हुज्जत के बारे यानी हुक्म ज़ाहिरी हुक्म वाक़ई के बारे में शक है, आया हुक्म ज़ाहिरी भी है या नहीं है इसके बारे में। ये दो मौरिज असल अमली के जारी होंगे। और तकफिल बरातुल उला, यह फकत एक बरात ही काफ़ी है, यानी बरात को जारी करेंगे आप तकलीफ वाक़ई मशकूक से, नतीजे में अदम हुर्मत को साबित करेंगे, ये है, यानी एक दो बरात जारी होंगी या एक बरात जारी होगी, ये इसमें इख्तलाफ है। वह कलिमतुन उखरा, दूसरे अल्फाज में अन्नल उसूल अल अमलियत हल यख्तस्सु मौरिदुहा बिशक्क फिल अहकामिल वाक़ियत, कि उसूल अमले का जारी होने का मौरिद मकाम आया मखसूस है उस शक के साथ जो अहकाम वाक़िया में शक किया जाता है, और यशमुल मौरद शक फिल अहकाम ज़ाहिरियत नफ्सिहा, या अहकाम ज़ाहिरिया के अंदर जो मुकल्लफ को शक होता है वहां पे उसूल अमल जारी होते, क्या है ये सवाल है। जवाब में दो कौल हैं, उनमें से एक कौल ये कद युकाल बिअन्नना फिल मिसाल अल मज़कूर नहताज इला बरातैन, ये है कि हम दो बरात को जारी करेंगे, एक बरात नहीं, यानी एक कौल था कि दो बरात, दूसरे था एक बरात, कि दो हम जो मिसाल बयान की गई उसमें मोहताज हैं दो बरात को जारी करें। क्यों? चूंकि यूजद एहतमालान सालिहान ले तंजीज़, चूंकि दो किस हमारे पास एहतमाल पाए जाते हैं, ठीक, एक तकलीफ वाक़ई के बारे में और दूसरा हुक्म ज़ाहिरी मशकूक के बारे में। मुनज्जिज़ के लिए दो एहतमाल पाए जाते हैं जो दोनों मुनज्जिज़ की सलाहियत रखते हैं, नतीजे फनहताज इला मुअमिनन मिन कुल्ल मिनहुमा, नतीजे में मोहताज हैं एक ऐसे सबब की जो इन दो एहतमालों से हमें नजात दे, जो दो एहतमालों से में से एक की जानिब हमारा यकीन या ज़न की सूरत में तब्दील करे। अहदुमा, पहले दो कौन से एहतमाल है? वो ये एहतमाल तकलीफ वाक़ई, तकलीफ वाक़ई का हमें एहतमाल है कि तकलीफ वाक़ई शुरबतुतन हमारे लिए है या नहीं है। वलिनुसम्मिह बिल एहतमाल बसीत, इसका हम नाम रखते हैं एहतमाल बसीत, यानी खाली हुक्म वाक़ई के बारे में। वल आखिर, दूसरा क्या? एहतमाल क़यामिल हुज्जत अलैहि, हुक्म वाक़ई के ऊपर दलील कायम है या नहीं है, यानी एक तो शक है, दूसरी जानिब से उसके बारे में एक और दलील फर्क खबर सिका वगैरह मौजूद है या नहीं है, उसके होने का भी एहतमाल है जो उस को बयान कर रही हो कि हुर्मत है,
वह चूँकि इन्नल हुज्जियत मानाहा, चूँकि हुज्जत का माना क्या है कि इबराद व शिद्दत एहतमामिल मौला बेतकलीफिल वाकिल मशकूक, के हुज्जत का मतलब यह है कि मौला का मकसद यह है कि मौला ये चाहता है कि हुक्म ताकलीफ वाकई मशकूक के बारे में एहतमाम किया जाए। कमारफ न साबिकन, जैसे हम जान कर आए ये बात कि मौला का बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है तकलीफ वाकई मशकूक के बारे में इंदल बहस। ये हम जानकर मैं उस वहाँ पे जब बहस हमने की थी फी हकीकत अहकाम ज़ाहिरी, अहकाम ज़ाहिरी की हकीकत के बारे में। बस फ़एहतमालुल हुज्जत अलल वाक़िल मशकूके, बस हुज्जत यानी एक ऐसी दलील के होने का एहतमाल जो दलालत कर रही है उस हुक्म वाकई मशकूक के बारे में, यानी जो मिसाल हमने दी शुर्ब तुतन की हुर्मत को बयान कर रही, शक एक तरफ शक है, दूसरे से हुज्जत के होने का एहतमाल, और वो ऐसी हुज्जत हो जो हुक्म वाकई को बयान हुर्मत को बयान कर रही हो, यानी एहतमाल तकलीफ वाक़ियुन मुतअल्लिकुन एहतमाम मौला, यानी हुक्म एहतमाल तकलीफ एक वाक़ई है जिसका ताल्लुक वाक़े के साथ है, और मौला चाहता, मौला का एहतमाम शदीद है वादम रज़ाई बितफ़ीतिही, और मौला राजी नहीं है, मौला इतना एहतमाम उसके बारे में हुक्म वाक़ई के बारे में करना चाहते हैं कि मौला असल राजी नहीं है कि ये हुक्म वाक़ई से मुकल्लफ रह जाए, मुकल्लफ की दस्तरसी ना हो। वलिनुसम्मा हाज़ा बिल एहतमाल मुरक्कब, इसको हम नाम रखते हैं एहतमाल मुरक्कब। वालैहि, इस बिना पे फल बराअतु अनिल एहतमाल बसीत है, ये दो हम अगर एहतमाल बसीत से के बारे में जो बरात जारी करेंगे ला तकफी। अच्छा, एहतमाल बसीत से जारी बरात जब जारी करेंगे नतीजा निकलेगा हुक्म वाक़ई हुर्मत शुर्बत तुतन नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, यानी यहाँ पे एहतमाल आप बरात को जारी नहीं कर सकते, क्यों? बल्कि लाबुद्द मिन तअमीन मिन नाहियत एहतमाल मुरक्कब अज़न बेबरात सालिन, बल्कि ज़रूरी है आप एहतमाल मुरक्कब से के लिहाज से यानी मिन तामीन यानी हिफाजत के लिए, बचने के लिए, अमनीत के लिए ज़रूरी है कि आप एहतमाल मुरक्कब के दूसरे बरात को भी जारी करें, यानी दो किस्म की बरात। अब ये एक था। अब शहीद सदर फरमाते हैं वक़द युअतरज़ु अला ज़ालिका, इस बात पर एतराज किया गया है कि दो बरात जारी होंगी। एतराज यूं है बिअन्नल अहकाम ज़ाहिरियत कमा तक़द्दम फिल जुज़ इस्साबिक़ मुतनाफ़ियतुन बिवुजूदातिहिल वाक़ियतिन, जिस तरह आप जानकर आए हैं यानी माक़बल अहकाम ज़ाहिरी की मबाहिस में कि अहकाम ज़ाहिरिया अहकाम वाक़ई की तरह अपने वजूद वाक़ई में एक दूसरे के तनाफ़ी रखते हैं। फ़र्क हुर्मत नफ़ी करती है वजूब की, वजूब नफ़ी करते हुर्मत की है। फ़इज़ा जरतिल बराअतु अनिल हुज्जतिल मशकूकते, अब अगर हुज्जत मशकूका यानी दलील मौजूद है या नहीं है, हमें शक है हुर्मत शुर्ब तुतन के बारे में, अब बरात जारी करते हैं, नतीजा ये निकलता है कि कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है, वह फर्ज किया जाता है कि अन्ना ये बरात कान साबिततन के बरात है, माफ कीजिएगा कि ये हुज्जत मौजूद है, तो यल्ज़म इज्तिमा हुक्मैन ज़ाहिरियैन मुतनाफ़ियैन, इज्तिमा से दिन लाजिम आ जाता है, लाजिम आता है कि दो हुक्म ज़ाहिरी जो आपस में तनाफ़ी रखते हों, यानी वजूब और हुर्मत, जवाज़ व अदम जवाज़ ये आपस में तनाफ़ी रखते हैं, इज्तिमा ज़िद्दैन लाजिम आ जाएगा जो कि महाल है। अब ये था कि यानी इज्तिमा ज़िद्दैन लाजिम आ रहा है, ये इश्काल था। वह जवाब उल एतराज़ है, अब इस एतराज़ का जवाब ये है कि अन्नल बरात हुना निस्बतुहा इलल हुज्जतिल मशकूकते निस्बतुल हुक्म ज़ाहिरी इलल हुक्मिल वाक़ई, यहाँ पे बरात की निस्बत हुज्जत मशकूका की के साथ मुकायसा करते हुए वही निस्बत है जो हुक्म ज़ाहिरी के हुक्म वाक़ई की होती है। ठीक क्यों? लिअन्नहा मुतरत्तिबतुन अला शक्क फ़ीहा, चूंकि बरात मौकूफ है इस पर जब आप हुज्जियत के बारे में शक कर रहे हैं तब आप के पास बरात की नौबत आती है। फ़कमा ला मुनाफ़ात बैनल हुक्म ज़ाहिरी वल वाक़ई, बस जिस तरह आप जानकर हुक्म वाक़ई और ज़ाहिरी में असलन मुनाफ़ात और तज़ाद नहीं होता, कज़ालिक ला मुनाफ़ात बैन हुक्मैन ज़ाहिरियैन तूलियैन मिन हाज़िल क़बील। हाँ, अगर दो हुक्म ज़ाहिरी एक दूसरे के तूल में हैं तो फिर इनके अंदर मुनाफ़ात कोई किस्म का नहीं है। वमा तक़द्दम साबिक़ में तनाफ़ी बैन अहकाम ज़ाहिरी व वजूदातिल वाक़ियते, और जो चीज़
پہلے گزر گئی ہے وہ کہ تنافی ہے احکام ظاہریہ میں اپنے وجود تواقی میں، یہ ینبغی ان یفہم، ضروری ہے کہ اس تنافی کو سمجھا جائے فی حدود الاحکام الظاہریۃ العرضیۃ، وہ احکام ظاہری جو ایک دوسرے کے طول میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، ایک دوسرے کے تقابل میں ہیں، ای التی یکون الموضوع فی النحو واحد من الشک، یعنی جن کے اندر موضوع کیا ہے، ایک قسم کے شک کا ہونا ہے. شک یعنی ایک قسم کا شک ہے. جب ایک قسم کا شک ہے یعنی دو ہیں فرض کرے، اس میں بھی ایک قسم کا، اس میں بھی ایک قسم حتماً تنافی ہو جائے گی، وہ اس کی نفی کرے گا، یہ اس کی نفی کرے گا، نتیجے میں ان کے اندر تضاد پایا جائے گا، عرض میں ہیں چونکہ، لیکن طول میں نہیں ہوتے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.